चीजें we come to know mind क्या होती है. Mind is what? Brain is what? What do you think? We get mind tumor or brain tumor? Brain tumor? Why don't we say mind tumor? Does mind get tumor? Then what mind? It remains in a negative thoughts. What are negative thoughts? So since morning till the night we keep on thinking something or the other related to the physical world, physical body, physical things, but we have forgotten completely about the spirituality. तो अभी ये रोजन की दुनिया चल रही है, जैसे कि ये कलयुग जो बोलते हैं, तो कलयुग जो है हम लोग इस रोजन की दुनिया में हमारी बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी है ना? So we'll do some small meditation. Before that, we'll just call upon Mr. Amol Kokani sir. He is High Court and Supreme Court advocate. At the same time, he has done his mechanical engineer and also he has well versed with other streams like CA and income tax. Okay. So he's a very good motivational speaker and he has all the way came from New Delhi just for you people. So take the advantage of this beautiful and wonderful seminar. Okay. So we'll just call Mr. Amol Kokani sir. In Srimad Bhagavad Gita, in chapter number 6, slok number 12 and 13, it is mentioned that how to meditate. So you have to sit straight, your back should be straight, neck should be straight, and you have to concentrate in the middle of the forehead just for 2 minutes. Then we will start the session in the middle of the forehead here. You have to imagine star blinking in the sky in your forehead, middle of the forehead. When you start doing meditation, many thoughts will come into your mind. You don't have to run behind those thoughts. Don't remember your friends, your relatives, your parents. Don't remember anything which is very much favorite for you. Only concentrate in the middle of the forehead, detached from the world, complete detachment. Zero, nil, only point of light situated in the middle of the forehead, nothing else. I am a peaceful soul situated in the middle of the forehead. I am point of light situated in the middle of the forehead. Don't close your eyes. Your eyes should be half open and half closed. Control your thoughts. Do not remember anyone. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। मन में बहुत ज्यादा थॉट्स आए, मल्टीपल थॉट्स 2 मिनट में,
और बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं, तो वो समझे कि उनका मन बीमार है। जिनके मन में कम थॉट्स आए, माइंड फोकस रहा इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, उनका मन हेल्दी है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ चेकिंग है। आपको रोज मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को कंट्रोल करने का? हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं, 4 o'clock। एज पर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय अगर आप जल्दी उठकर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, so there will be much spiritual energy and there will be increase in your will power। जिसको हम विल पावर बोलते हैं उसको बोलते हैं मनस शक्ति, आत्म शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। आज विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग है या कमजोर हो चुकी है? क्या है आंसर? क्या है? विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग है या कमजोर हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। उसका रीजन ये है, we are giving food to the body but we are not giving food to the soul। शरीर को तो भोजन देते हैं लेकिन आत्मा को, रूह को भोजन नहीं देते हैं। आत्मा का भोजन क्या है पता है आपको? हाँ जी, क्या बोला? पीस। शरीर को क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए। वैसे आत्मा को शांति चाहिए। तो शरीर को ताकत चाहिए तो ताकत खाते नहीं है हम, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो भोजन हमारा अलग है। चाहिए हमारे आत्मा को शांति, तो उसके लिए भोजन क्या है? लेना क्या है उसके लिए? What is the food of the soul? Perfect answer, meditation, yoga। Yoga is the wrong answer, meditation is the perfect answer। Meditation means ध्यान, और योगा जो है जिसको हम योगा बोलते हैं, this is wrong word, the precise word is योग। And what is the meaning of योग? हम क्या समझ बैठे आज कि योगासन और प्राणायाम, जो रामदेव बाबा नेशनल न्यूज टीवी चैनल पे सवेरे सवेरे आके पेट हिलाते, अपना बेली ऊपर नीचे करते हैं, that is योग। That is not true योग। In श्रीमद् भगवद गीता, भगवान taught Arjun Rajयोग, and that Rajयोग is different, and what yogasan and pranayam Ramdev Baba is teaching, that is different। इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हम लोग, और फॉरेनर्स को भी पता है कि ये हमारा प्राचीन राजयोग है। योग का असली मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। जो आज योगासन और प्राणायाम सिखाया जाता है, दैट इज ओनली फॉर हेल्थी बॉडी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए, मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो योग है वो डिफरेंट है। तो योग का अर्थ है, किसी को पता है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड योग? द मीनिंग ऑफ द वर्ड योग इज कनेक्शन। क्या? कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन?
कनेक्शन किसका किससे? बॉडी का सोल से। और कोई आंसर है किसी के पास? हार्ट टू ब्रेन। मतलब इनका जवाब है दिल का कनेक्शन दिमाग से, हार्ट टू ब्रेन। और किसी का कोई जवाब? किसी का कहना है शरीर का कनेक्शन आत्मा से, रूह से। और कोई जवाब? दिल का कनेक्शन आत्मा से। और अरे आपके जन्म देने वाले पिता को तो आप भूल ही गए। जो जन्म देने वाले पिता है वो भी दो है। देयर आर टू फादर्स। आपको आश्चर्य लगेगा, वन फादर who is giving birth to the body and there is one another father who is giving birth to the souls and he is called as supreme soul या अल्लाह या गॉड फादर या शिव या ईश्वर। भूल गए उसको? तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से या ईश्वर से या अल्लाह से या गॉड से, इसको कहते हैं योग। योग means connection, union of the soul with supreme soul, supreme soul with supreme authority, supreme power। जैसे बैटरी होती है, बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो मोबाइल की बैटरी हम रोज चार्जिंग करते हैं ना, दिन में 2 बार भी मोबाइल चार्जिंग को लगाते हैं, भूलते नहीं है। वैसे ये आत्मा एक बैटरी है। ये आत्मा की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है या नहीं होती है? कैसे डिस्चार्ज होती है? रीजन क्या है पता है किसको? हाँ, गांधी जी के 3 बंदर पता है आपको? फर्स्ट क्या है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन हम रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते भी हैं। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी या नहीं होगी? और जो आत्मा है ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, असली आइडेंटिटी है। गूगल सर्च करते हो आप? गूगल से आप सारी दुनिया को सर्च कर सकते हो, लेकिन अपने आप को नहीं जान सकते हो, अपने आप को नहीं ढूंढ सकते हो। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। हु एम आई, इस पहेली का जवाब दिया। मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, जो अर्जुन को पता नहीं थी। तो क्या है मेरी असली आइडेंटिटी, कौन बताएगा? Who am I? साइंस ने आज बड़ी बड़ी पहेलियों का जवाब दे दिया, लेकिन साइंस एक पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा है। Who am I? साइंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स बन गए। क्या क्या चल रहा है? कोई गाड़ी आ रही है, हवा में भी उड़ सकती है, जमीन में भी चल सकती है, सबमरीन्स आए, न्यूक्लियर वेपन्स आए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, मिसाइल्स आए, सब कुछ आया, घर में एयर कंडीशनर आया। लेकिन साइंस के पास इस पहेली का जवाब नहीं है, हु एम आई। क्या है इस प्रश्न का जवाब? आप कौन हैं? हाँ? कौन है आप? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मीनिंग आप जानते हो क्या? ह्यूमन बीइंग 2 वर्ड से बना हुआ है, ह्यूमन प्लस बीइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन का मतलब है ह्यूमन स्केलेटन और बीइंग का मतलब है
आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, रूह, स्पिरिट। समझ में आ रहा है? तो मेरी असली आइडेंटिटी ये बॉडी है, जो हड्डी मांस का पुतला या हड्डी मांस का बुत, ये बॉडी मेरी असली आइडेंटिटी है, जो मरने के बाद जला दिया जाता है या तो गाड़ दी जाती है जमीन में। ये मेरी असली आइडेंटिटी है, या मेरी परमानेंट आइडेंटिटी कुछ और है, जो आइडेंटिटी सदा काल के लिए इमॉर्टल है। वो आइडेंटिटी कभी मरती ही नहीं है। शरीर मर सकता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, इट इज इमॉर्टल। ये मेरी असली आइडेंटिटी है। सो हु एम आई का आंसर है आई एम अ सोल। आप बोलेंगे इससे क्या होता है? इससे आपके जीवन के हजारों प्रॉब्लम्स के आंसर है, और आप प्रैक्टिकली जब ये आपकी रियल आइडेंटिटी आई एम अ सोल सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, ये बॉडी भी मैं नहीं हूं। जब आप बोलते हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत, तो आपका सर अलग है और मेरा कहने वाला मैं अलग है। आप बोलते हो कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मतलब हाथ अलग है, ये मेरा स्लाइड चेंजर है, ये मेरा माइक है, माइक अलग है, मैं अलग हूं। मेरा सर दर्द कर रहा है, सर अलग है, मैं अलग हूं। मेरी बॉडी पेन कर रही है, मतलब बॉडी अलग है, मैं बोलने वाला अलग है। जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, एक सेकंड में क्या चला जाता है, जिसके बाद हम बोलते हैं कि डेड बॉडी, एकदम परफेक्ट। तो ये मेरी असली आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से मेरी आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हाथों से खाना खा सकता हूं, एक दूसरे की पिटाई कर सकते हैं। तो मेरी जो असली आइडेंटिटी है उसको मैं भूल चुका हूं, उसकी वजह से मैं दुखी हूं। आई एम नॉट गेटिंग परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिंग ऑल द मीन्स, ऑल द इक्विपमेंट्स डेवलप बाय द साइंस। घर में एयर कंडीशनर लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, जितनी भी रेफ्रिजरेटर लेके आए, सारी चीजें सारी दुनिया में हम ढूंढ ढूंढ के लाके इकट्ठा कर रहे हैं। क्या उसके बावजूद हमें परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है? अच्छा दोस्त बनाया, वो भी धोखा दे जाता है, देता है या नहीं देता है? यस, कितना कॉन्फिडेंस से बोला, अनुभवी है, एक्सपीरियंस। तो इसका मूल कारण है पीस एंड हैप्पीनेस हमारे अंदर समाई हुई है, वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, रिलेटिव्स के अंदर ढूंढ रहे हैं, पेरेंट्स के अंदर ढूंढ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे धोखेबाज। तो जो रियल पीस एंड हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। तो मेरी असली आइडेंटिटी है आई एम अ सोल। मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड्स, एक हिंदी में और जो हिंदुइज्म को टैली करती है, और दूसरी स्लाइड ये जो कंसेप्ट है आप नुक्ता नूर रूह है बोलते हैं सब मुस्लिम्स में, नुक्ता नूर रूह है, हड्डी मांस का बुत प्लस रूह इज इक्वल टू जानदार इंसान। तो ये मेरी असली आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूं, और मैं आज मेरी जो बुद्धि है वो मेरे फिजिकल बॉडी में उसमें फंस चुकी है, और जो फिजिकल बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ही मैं सब कुछ समझ बैठा हूं। तो जो सोल का जो फूड है, फर्स्ट फूड इज द मेडिटेशन एंड द सेकंड फूड इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक कोई भी समय नहीं देते हैं। कोई देता है इधर 15 मिनट, आधा घंटा? कोई नहीं देता है। लेकिन हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या है, यूट्यूब,
स्नैपचैट मैंने आज तक यूज नहीं किया, फेसबुक, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। जब फेसबुक आया ना तो मेरे को ये गाना, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब, सुना है गाना ये कभी आप? यस। तो ये जो सोशल मीडिया है, आज इसमें हम टाइम देते हैं क्या? 24 घंटे में देते हैं ना, देते हैं। और इससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। सवेरे से लेकर रात तक हमने अगर सेल्फ असेसमेंट किया, अपने मन को चेक किया, आप जैसे होमवर्क करते हो वैसे रोज रात को सोते समय सेल्फ अफर्मेशन एक डायरी में लिखो, सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन के अंदर कितने सारे निगेटिव थॉट्स आए, परसेंटेज 60% निगेटिव थॉट्स आए, 70% आए, 80% आए, और किस प्रकार के आए। तो आज की तारीख में सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? निगेटिव और वेस्ट थॉट्स। और जितने वेस्ट थॉट्स आएंगे, जितने निगेटिव थॉट्स आएंगे, उतनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज माना मन की शक्ति डिक्रीज, मन की कंट्रोलिंग पावर डिक्रीज, उसका मतलब विल पावर कम हो जाएगी आपकी। सही ना? तो विल पावर कमजोर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, मन जीत सो जगत जीत। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया लाइफ में, वो हार गया। इसलिए आज क्या हो रहा है? टेंशन, डिप्रेशन जाते हैं ना, फिर कोई काम में नहीं आती पढ़ाई। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, आईएएस ऑफिसर्स सुसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बॉडी बिल्डर्स, सेलिब्रिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, मन से हार। तो वो तो इंटेलेक्चुअल्स है सोसाइटी के, फिर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे? क्या नहीं है उनके पास? उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, रूहानियत नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उसकी कमी है। तो सबसे बड़ा जो ज्ञान है, भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस दुनिया में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। अध्यात्म का मीनिंग क्या है? अधि प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर की नॉलेज। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल, रूह। जो आत्मा की नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज मेडिकल साइंस ने जो भी तरक्की की है, उससे शरीर के एक एक अंग की, नर्व्स की, आर्टरीज की, हर एक अंग की सारी चीजों की नॉलेज मेडिकल साइंस के पास है। लेकिन साइंस के पास आज की डेट में आत्मा की नॉलेज नहीं है। डॉक्टर को कुछ समझता नहीं है, वो आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है आपको, जिससे आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है, वो आपको बहुत सारे टैबलेट्स दे देगा, जिससे सोते रहोगे आप, और ही साइड इफेक्ट्स होंगे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा है मेडिटेशन या ध्यान। ज्ञान और ध्यान ये आत्मा का भोजन है। इस आत्मा को भोजन के लिए हम कोई भी समय नहीं देते, और इसका जो डिफरेंशिएशन है उस तरीके से भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम दुखी, अशांत है, रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। चाइना पहली कंट्री है जिसने इंटरनेट का एडिक्शन को डिसीज करके डिक्लेयर कर दिया है। और एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, उसने ये कहा कि जब इंटरनेट का हम ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो बहुत लो होती है, और इंटरनेट का नॉर्मल यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल होती है। और आज
जितने भी हमारी इमोशनल हेल्थ है, एक होती है IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, और दूसरा होता है EQ। EQ मतलब क्या पता है? इमोशनल कोशेंट। सुना है? IQ तो सुना है ना आपने? तो इंटेलिजेंट कोशेंट तो पता चलता है, लेकिन इमोशनल कोशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो इमोशंस है उसका कनेक्शन आज की डेट में सोशल मीडिया से है। आपने कोई वायलेंट मूवी, वेब सीरीज, कोई गलत चीज ऐसी देखी तो आपके अंदर भी वायलेंस, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, क्रोध आता है या नहीं आता है? फिर घर का सामान उठा इधर उधर से फेंकना चालू कर देते हैं। तो इनसे हमारी इमोशनल हेल्थ जुड़ी हुई है। आपका जो माइंड एंड इंटेलेक्ट है, आपके मन में जो ख्यालात आते हैं, जो विचार आते हैं, और आपकी जो बुद्धि है, उसको आप जैसा फीड करेंगे वैसे ही आप बनोगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आएगा। बोया बीज बबूल का, पेड़ बबूल का, तो आम कहां से आएगा? अगर हमने निगेटिव थॉट्स, निगेटिव वेस्ट थॉट्स जिससे हमारे मन बुद्धि में आए, ऐसी चीजें आंखों से देखेंगे। आप जो किताबें पढ़ते हो, समझो आप नॉवेल्स पढ़ते हो, फिक्शनल या कोई गंदी गंदी चीजें, तो वैसे ही आपका दिमाग बनेगा। जो आप फीड कर रहे हो वैसे आपका माइंड बनेगा। वीडियो गेम्स खेलोगे, वो उसको शूट कर रहा है, वो क्या पबजी विबजी क्या क्या होता है ना, वो फ्री फायर फ्री में है क्या? तो जैसे आप संग करोगे बुद्धि का, एज अ कंपनी, जैसे आपकी कंपनी होगी वैसे ही आप बनोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। सेकंड, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो, वैसा ही वर्ड आप क्रिएट करते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप कुछ सोचते हो, जिसके बारे में सोचते हो उसकी ही फोन की घंटी बज जाती है, होता है ना? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यूनिवर्स में आपके माइंड से जैसे थॉट्स आप फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, जैसे वाइब्रेशंस आप फेंक रहे हो, वैसा ही रिटर्न आपके पास। ये बॉल मैंने फेंका, दीवार पे टकराया, बाउंस बैक मेरे पास आ गया है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप अगर किसी के बारे में हेट्रेड, ईर्ष्या द्वेष, किसी के बारे में जलस, किसी के बारे में गंदे थॉट्स छोड़ोगे तो वैसे ही रिटर्न आएगा आपके पास। दूध दूध में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, सही है ना? तो आपके संकल्पों की जो शक्ति है, आपके थॉट्स की जो पावर है, वो आज आप भूल गए। आज आप इस इंटरनेट सोशल मीडिया में फंस गए और अपने अंदर की जो पावर है, जो इनर इंजीनियरिंग है, आपका जो अंदर का मीडिया है, उसको भूल गए। इसलिए नाम क्या है आपका? कोई भी, आपका बताओ। उस सुमैया, क्या क्या कर रहे हो आप अभी? क्या कोर्स ले रहे हो आप यहाँ पे? CEC फुल फॉर्म? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। सो यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, 12वीं 12th क्लास। क्या नाम पता है? सुमैया। सुमैया ने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शी वेंट टू USA फॉर जॉब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं सुमैया इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंपॉर्टेंट है। यहां बात चल रही है आपके थॉट्स के पावर की, आपके वाइब्रेशन के पावर की। तो सुमैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चली गई और उसकी माँ यहाँ पे संतोष नगर में रहती है, हैदराबाद में। तो माँ ने बच्ची को याद किया, तो वीडियो कॉलिंग मोबाइल में ट्राई किया।
और नेटवर्क फेल हो गया, कॉल लग नहीं रही है, कनेक्शन हो नहीं रहा है बेटी से, तो मां ने सच्चे दिल से अपनी बच्ची को याद किया, तो बच्ची को टचिंग होगा या नहीं होगा? 7 समुंदर पार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कहा जाना है? वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया में आग लगी थी, उधर मत जाओ। तो टचिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है? सुमैया को वहां पे हिचकी आ गई और उसने अपने फ्रेंड को बताया, जो फ्रेंड उस समय उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी। क्या नाम है आपका? सानिया। तो उसको बताया कि मां ने मुझे जरूर याद किया करके। तो ये जो पावर है, जहां साइंस फेल हो गया, साइंस के साधन फेल हो गए, लेकिन मां सच्चे दिल से अपनी बेटी को याद कर रही है, तो उसके वाइब्रेशंस इतनी जबरदस्त यूनिवर्स में जो आप थॉट्स फेंक रहे हो, वो वहां जाके टच हो गए, हजारों किलोमीटर पार। पॉसिबल है ना? तो आज ये मन की शक्ति, पहले के जमाने में मूवीज देखे आपने, इशारों में बात होती थी। अभी इतने मोबाइल्स आए, ये आए, वो आए, इतने साधन, उसके बावजूद ठीक से बात नहीं हो पाती। तो हमारी जो माइंड की जो संकल्प शक्ति है, थॉट्स की पावर है, वो कमजोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, और हम साधनों में फंसते रह रहे हैं। आज की डेट में एज पर स्टडीज एंड रिसर्च एंड डेटा अवेलेबल, 90% जो यंगस्टर्स है वो साइंस के साधनों में पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुके हैं। यस और नो? और ये एडिक्शन की वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स। कोटा राजस्थान में वहां 52 स्टूडेंट्स ने पिछले 4 सालों में, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। उसका कारण ये है, आज का जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको ये बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ने के लिए दी जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है, जिससे माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड, कंट्रोल्ड, फोकस रखा जाए, विल पावर को बढ़ाया जाए। तो एक है, अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो, इसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। और जो दूसरा एजुकेशन है जिससे आत्मा की और मन की शक्ति बढ़ती है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। उसकी कमी होने की वजह से आज हम इन प्रॉब्लम से सफर कर रियल पीस एंड हैप्पीनेस को हम अचीव नहीं कर पा रहे। There are 3 awards। आप इस चित्र में देख रहे हो, ये जो है आपका प्लेनेट है अर्थ, या आप रहते हो, उसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं सूक्ष्म लोक, मुस्लिम्स कहते हैं दुनिया, और उसके ऊपर जो है 7वां आसमान, 7th स्काई, और बोलते हैं उसको परम धाम या ब्रह्मलोक। सो दीज आर द 3 अबोर्ड्स, सटल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड सोल वर्ल्ड। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, जिसको हम अल्लाह, गॉड, ईश्वर किसी भी नाम से पुकारे, हमारी आत्मा की बैटरी अगर चार्जिंग करनी है तो हमारा कनेक्शन उससे होना चाहिए, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। तो उससे कनेक्शन हम जोड़ नहीं रहे, और हम जोड़ किससे रहे? जिनकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं हम। तो क्या मिलेगा हमको? हमेशा छोटी बैटरी का कनेक्शन बड़ी बैटरी से जोड़ना चाहिए या जनरेटर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा है या खुदा है, वो क्या है? ज्ञान का सागर है। क्या बोलते हैं उसको? उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? ज्ञान का सागर है, दरिया ए इल्म। सही बोल रहे हैं? वो शांति का सागर है, उसके पास 100% पीस एंड हैप्पीनेस है, दरिया ए अमन। तो उसके पास सारी खूबियां है, उसके पास सारे डिवाइन क्वालिटीज है, और हमारे पास आज की तारीख में
वो डिवाइन क्वालिटीज नहीं है। तो हमें उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। उससे कनेक्शन जोड़ने से वो पावर्स हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे। तो हम जो जर्नी करते हैं इस सोल वर्ल्ड से हम इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आते हैं सभी, और इस फिर से हम उधर जाएंगे। कब जाएंगे? एट द एंड ऑफ द कलयुग। अभी कौन से चल रहा? कलयुग। 4 युगास। कौन से 4 युग है? यस, बोलो बोलो। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। वेरी गुड। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेतायुग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। सो कलयुग में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, वायलेंस, मिलिटेंसी, आतंकवाद ये सारा अति में बढ़ जाता है, तो पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और जैसे ऋतु का चक्र घूमता रहता है, साइकिल, विंटर के बाद समर आता है, फिर रेनी सीजन आता है, फिर से विंटर आता है, वैसे ही ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग का जो चक्र है, साइकिल है, ये घूमता रहता है। और इस 4 युग के साइकिल में हमारी जो सोल है, एनर्जीज जो है, स्पिरिचुअल एनर्जीज, वो डिग्रेड होती जाती है। सतयुग में हाईएस्ट लेवल पे और कलयुग में कंप्लीटली डिग्रेडेड। तो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। अभी जो समय चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज साइंस ने एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। साइंस, ये बात सही है गलत है? मैं बोल रहा हूं मॉडर्न साइंस सारे मनुष्य सृष्टि को, संसार को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और उसका एक प्रूफ है 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। पता है आपको? रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर जरूर होगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे, देयर विल बी जजमेंट डे। और हिंदूज बोलते हैं कि उस समय ऐसा होगा कि सारी सृष्टि में महाप्रलय होगा। बोलते हैं शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो सारे स्क्रिप्चर्स में ये बात बोली है कि जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ जाते हैं, जब दुनिया का लास्ट समय, युग परिवर्तन का समय आता है। हिंदुइज्म में जिसको बोलते हैं कि जब ऐसा समय आता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके द्वारा क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, स्थापना, पालना और विनाश, ये कार्य होते। वैसे ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं उसको क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गैब्राइल, मुस्लिम्स में उसको बोलते हैं जिब्राइल, और विष्णु को, विष्णु देव जिसको बोलते हैं उसको क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं माइकल, और मुस्लिम्स में बोलते हैं मिकाइल, और ब्रह्मा को, शंकर को क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं इसराफिल और मुस्लिम बोलते हैं अजराइल। तो ये जो अलग अलग नाम है उनके मीनिंग्स अगर आप समझोगे तो सेम उनके जो ड्यूटीज है, क्रिएशन, सस्टेनेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, तो ये जो कार्य है ये सिमिलरिटी सारे धर्मों में सेम है। लेकिन आज स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होने की वजह से रिलीजन्स आपस में झगड़े कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो अगर आपने कंपैरेटिव रिलीजन्स का अगर स्टडी किया
स्पिरिचुअलिटी के अगर गहराई में गए तो आपको पता चलेगा सारे रिलीजन्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। आपको पता है अगर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो गया कलयुग में और न्यू वर्ल्ड अगर आ गया, जिसको आप बोलते हैं सतयुग, क्या बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, राम राज्य या सतयुग। समझ में आ रहा है? सतयुग ये ऐसी कंसेप्ट है जहां 100% पीस एंड हैप्पीनेस, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। अभी जो है, अभी किसी के पास करोड़पति अरबपति है, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, फिर भी वो उसके लाइफ में परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वेल्थ से, एक्सटर्नल वेल्थ से आप इंटरनल वेल्थ को खरीद नहीं सकते, एक्सटर्नल ब्यूटी से आप इंटरनल ब्यूटी को खरीद नहीं सकते। बाहर से कोई कितना भी सुंदर दिख रहा है, लेकिन जरूरी है क्या उसके अंदर भी उतनी ब्यूटी है? आज लोग एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं, एक्सटर्नल वेल्थ देखते हैं, या इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल वेल्थ देखते हैं? तो इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल वेल्थ स्पिरिचुअलिटी से आती है, आत्मा की नॉलेज से आती है, मेडिटेशन से आती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन से आती है। रोज 1 घंटा आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन, अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स सुनने हैं। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आधा घंटा रोज आपको मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, रात को सोते समय 15 मिनट, दिन में भी क्लासरूम में बैठे बैठे अपने आप को मेडिटेट कर सकते हो आप। तो ओल्ड वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो कोई एक कपल सरवाइव करेगा, जिससे न्यू वर्ल्ड स्टार्ट होगा। उस कपल का नाम क्या है? हा? क्या बोला? बोलो बोलो, शर्माओ मत। शर्मा सरनेम है क्या आपका? आदम और हवा, इन्होंने जवाब दिया। क्रिश्चियंस कहते हैं द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड एडम एंड ईव। मुस्लिम्स कहते हैं आदम और हवा। जैनिज्म बोलता है आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदुइज्म बोलता है आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज सारे रिलीजन्स में मिलेगी। और अभी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। और इस समय गॉड इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, क्योंकि आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आज के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आज के जो संत बाबाएं हैं, मौलवी है, वो इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते सिवाय भगवान के, ईश्वर के सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अगर हमें जन्नत में जाना है, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, तो जरूर अभी क्या है, यहाँ पे नरक है, जहन्नुम में रावण राज्य है। रावण राज्य का खलास करेंगे तभी तो राम राज्य में जाएंगे। तो आज की डेट में हम क्या समझते हैं? स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। इसी दुनिया में, इसी प्लेनेट पे कलयुग इज नथिंग बट हेल एंड सतयुग इज नथिंग बट हेवन। ये कंसेप्ट है जहन्नुम और जन्नत। ये कंसेप्ट जो है, ये हम नहीं समझने के कारण स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें प्रैक्टिकल अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप अगर रोज थोड़ा समय अपने पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए देंगे, माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मन को कंट्रोल करेंगे तो आपके जो बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स है, वो भी कंट्रोल में रहेंगे। भगवत गीता में बोला है द सेंस ऑर्गन्स एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दे आर पावरफुल, एंड व्हाट इज मोर पावरफुल देन द सेंस ऑर्गन्स। शरीर की इंद्रियों से पावरफुल क्या है?
पता है आपको क्या है पावरफुल? इंद्रियों से पावरफुल है, सेंस ऑर्गन से पावरफुल क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सारे सेंस ऑर्गन से। उससे पावरफुल क्या है? उससे पावरफुल है माइंड। और माइंड से पावरफुल क्या है? माइंड से पावरफुल क्या है? माइंड से पावरफुल है इंटेलेक्ट, बुद्धि, जिसको बोलते हैं अकल। तेरी अकल क्या घास खाने गई थी क्या? बोलते हैं ना, बोलते हैं? क्योंकि जो बुद्धि है वो अगर पावरफुल बनेगी तो वो मन को भी कंट्रोल में रख सकती है, और अगर मन पावरफुल बनेगा तो अपने फिजिकल बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल में रख सकती है। आज हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, और उसकी वजह से हम दुखी, अशांत है। ये एक वीडियो क्लिप देखिए। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होंगे, उससे अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से ओशन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ओशंस का वाटर लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो ओशंस में सबमर्ज हो जाएंगे। आज यूक्रेन, रशिया, दो कंट्रीज के बीच में 2 साल से वॉर चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, इनके बीच में भी वॉर चल रही थी, अभी रुक गई। पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। साइंस के जो साधन है उसका मिसयूज कर रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज का भी टेंशन है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो ये सारा प्लैनेट जो है हलाल गिजा। थर्ड वन इज द दैवी गुण, डिवाइन वर्च्यूज। फोर्थ वन इज द सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रू कंपनी, सहबत सदाए हक। सो दीज आर द 4 पिलर्स। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है पाकीज़गी, मीन्स सेलिबेसी, प्यूरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट एंड स्पीच। आज हमारा जो स्पीच है इसमें भी प्यूरिटी नहीं है। हम दूसरे से गाली दे के बात करते हैं, दूसरे के लिए चुगली करेंगे, हेट्रेड, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, जेलस करेंगे। सो प्यूरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच is called as celibacy. It is self control. So these techniques of Raj Yoga स्वयं भगवान आके सिखाता है ये टेक्निक्स। और अभी जो समय चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है, नॉस्ट्राडेमस। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ नॉस्ट्राडेमस? नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शन है। किरो, किट, एंडरसन, जुल्बर्न, these are the predictors, famous popular predictors. गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, उनकी एक प्रोफेसी कॉमन है जिसमें उन्होंने बोला है इन 21st century one great person will incarnate in northern India and he will teach the knowledge of soul and supreme soul. He will bring the spiritual revolution in entire world and he will establish one religion, one kingdom, one king, one opinion, and all the other religions, other castes, everything will be destroyed. Bharat will become Vishwaguru और दुनिया में जन्नत आएगी, स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, ऐसी भविष्यवाणी की है। और अभी प्रेजेंट टाइम्स में ये वर्तमान समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपको जाना चाहिए। अध्यात्म को अपने जीवन में आपको अप्लाई करना चाहिए, लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच। Yeah, you all enjoyed the topic? Yes. So
as you have given your information, we'll get in touch with you, and if at all you are interested, you can go ahead and you can take the 7 days free course.